اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر سب سے شاندار ولیمہ کیا تھا. آپ نے اب تک کسی بیوی سے نکاح کے موقع پر اتنا شاندار ولیمہ نہیں کیا تھا. جب آپ کا نکاح ہوا حضرت زینب کے ساتھ تو حضرت انس کی ماں ام سلیم انہوں نے حضرت انس سے کہا کہ اللہ کے رسول کا نکاح ہوا ہے, چلو اللہ کے رسول کو تحفے میں ہم کوئی چیز دیتے ہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں میری ماں نے کھجور, پنیر, گھی وغیرہ کو ملا کے مالیدہ بنایا اور ایک برتن میں لے کر کے مجھے دیا کہ جاؤ اللہ کے رسول کو دے دو. جب میں وہ مالیدہ لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا, مشکل سے وہ 3-4 لوگوں کے کھانے بھر کا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس ایک کام کرو, جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ, عمر کو بلا لو, عثمان کو بلا لو, فلاں کو بلا لو, فلاں کو بلا لو, اور جو تمہیں راستے میں ملے اس کو بلا کے لاؤ. حضرت انس کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یہ 3-4 لوگوں کا کے کھانے کی چیز اور اللہ کے رسول انلمیٹڈ کہہ رہے جو ملے اس کو لے آؤ. اس کے بعد کہتے ہیں جب میں لوگوں کو دعوت دے کے واپس آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کا حجرہ جو ہے, آپ کا کمرہ, آپ کا گھر بھرا ہے مہمانوں سے, ہر طرف لوگ ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ 10 کی تعداد میں آپ لوگ آئیے اور کھاتے چلے جائیے, اللہ کا نام لیجئے اور کھاتے چلے جائیے اور اپنے آگے کا کھانا کھائیے. حضرت انس کہتے ہیں صحیح بخاری کی 5163 نمبر کے حدیث ہے, 70 یا 72 لوگ تھے, سب لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا. حضرت انس کہتے ہیں میں نے جا کے اپنی ماں ام سلیم سے کہا کہ امی وہ تھوڑا سا مالیدہ آپ نے 4-5 لوگوں کے بھر کا دیا تھا, 70 لوگوں نے کھایا. تو حضرت ام سلیم نے کہا یہ نبی کی برکت تھی, 70 کیا پورے مدینہ کے لوگ اگر چاہتے تو وہ کھانا کھا سکتے. تو سب سے شاندار ولیمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پہ کیا. اچھا, اس ولیمہ کے موقع پر بھی بہت سی بری رسموں کو ختم کیا گیا. ایک رسم یہ تھی, لوگوں کا ایک معمول تھا, ایک عادت تھی کہ کھانا کے ٹائم لوگوں کے گھر چلے جاتے تھے, پتہ لگاتے تھے کس کے یہاں کھانا کتنے بجے تیار ہوتا ہے. پتہ لگا 2 بجے کھانا تیار ہوتا ہے, 2 بجے اس کے گھر دھمک گئے. اب بھائی 2 بجے کھانے کا ٹائم ہے, آپ پہنچ گئے, تو اب 2 صورت ہے, یا تو آدمی یہ کہے کہ بھائی کھانے کا ٹائم ہے آپ بعد میں آئیں, یا آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے آپ کو کھلائے. اب بھائی کھانا اتنا ہے نہیں ہے, تو یہ ایک غلط رواج تھا جو رائج تھا. ایک رواج یہ تھا کہ کئی لوگ کھانا کھانے جاتے تھے تو کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہتے تھے, اب باتیں کر رہے ہیں لمبی چوڑی, وہیں پہ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں. اب بھائی کھانا کھا لیا آپ نے, اب اپنے گھر تشریف لے چلے جائیں. اب صاحب کھانا کو کون سا کام ہے. اب حضرت زینب سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا ہے, ولیمہ کی دعوت ہے, کھانا کھا کے بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول تکلیف محسوس کر رہے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں, میری شادی ہوئی ہے, مجھے اپنی اہلیہ سے باتیں کرنی ہے, لیکن وہاں پہ 3-4 لوگ آخر تک بیٹھے تھے, بہت دیر کے بعد وہ لوگ گئے. تو اس طریقے کی جو رسمیں تھی. اچھا, ایک چیز یہ بھی تھی کہ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. لوگ آتے تھے ازواج مطہرات سے فیس ٹو فیس باتیں کر لیتے تھے, پردے کا ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو حضرت زینب کا ولیمہ ایک برکت والا ولیمہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل کر دی, جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے, اور جس میں کئی اس طریقے کی چیزوں کی, بری عادتوں کی اصلاح کر دی گئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, اے ایمان والو تم نبی کے گھر میں داخل مت ہونا جب تک تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے. الی طعام غیر ناظرین اناء, کھانے کے ٹائم, کھانے کے تیار ہونے کا انتظار کرتے ہوئے تم کسی کے گھر نہ جایا کرو. ولکن اذا دعیتم, جب تمہیں دعوت دی جائے کھانے کے لیے تب تم جاؤ. فادخلوا, جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے تب تم جاؤ. فاذا طعمتم, اور جب تم کھانا کھا لو, فانتشروا, تو زمین میں پھیل جاؤ, چلے جاؤ, وہاں پہ بیٹھے نہ رہو. ولا مستانسین لحدیث, وہاں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرو, وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گپ شپ نہ کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, تمہاری اس حرکت سے نبی کو تکلیف پہنچ رہی تھی. فیستحیی منکم, لیکن نبی تم سے کوئی بات کہنے میں شرما رہے تھے. واللہ لا یستحیی من الحق, لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اور اے میرے نبی کے صحابہ جب تم نبی کے گھر میں جاؤ اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو, کوئی چیز مانگنی ہو, تو پردے کی آڑ سے مانگو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, اسی میں تمہاری بھی صفائی ہے, اسی میں ان کی بھی صفائی ہے, تمہارے دل کی بھی صفائی اس میں ہے اور ان کے دل کی صفائی بھی اسی میں ہے. ان ذالک, اس کے بعد فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور اللہ کے رسول کے بعد آپ کی بیویوں سے تم کبھی نکاح نہیں کر سکتے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل ہوئی. حضرت زینب کے لیے یہ
शरफ की बात है, फजीलत की बात है कि उनके वलीमा के मौके पर यह आयत नाज़िल हुई और उनका यह वलीमा बहुत सारी इस्लाह का सबब बना, बहुत सारी बुरी रस्मों के खात्मा का सबब बना। और पर्दे का हुक्म भी तभी नाज़िल हुआ, उस आयत के बाद सहाबा ने अपने घरों में पर्दे लटका दिए। अब बिला इजाजत कोई किसी के घर में पर्दे के उस पार नहीं जा सकता था। लेकिन जब यह निकाह हुआ तो अल्लाह के रसूल पर मुनाफिकों ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। मुनाफिकों ने, काफिरों ने, मुशरिकों ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। 3 बड़े बड़े एतराज किए। पहला एतराज, सदियों की रस्म तोड़ दी, अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर ली, अपनी बहू से निकाह कर लिया। बहू ससुर के लिए महरम होती है, इसने हुर्मत का ख्याल नहीं रखा, अपनी बहू से निकाह। ये पहला एतराज था। दूसरा एतराज ये था कि अल्लाह के रसूल सबके लिए नमूना है और कुरान ये कह रहा है कि ईमान वालों तुम 4 निकाह कर सकते हो, 4 से ज्यादा नहीं। नबी का ये 5वां निकाह था। आपके निकाह में हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा ऑलरेडी थी। ये नबी का 5वां निकाह था। तो एक एतराज ये था कि ये तो नबी अपनी ही बात से मुकर रहे हैं, जो अपने आप को नमूना भी करार दे रहे हैं, बाकी लोगों के लिए 4 निकाह की इजाजत है, 4 से ज्यादा निकाह कर रहे हैं। और तीसरा एतराज ये था कि अगर मुंह बोले रिश्ते की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है और ज़ैनब से निकाह करना सही था, तब भी नबी को नहीं करना चाहिए था, मसलहत के तहत नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि इसकी वजह से कमजोर टाइप के लोग इस्लाम से के दुश्मन बन सकते हैं, इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा हो सकती है। ये 3 बड़े बड़े एतराज काफिरों की तरफ से हुए। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में एक आयत में तीनों एतराज का जवाब दे दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद तुम्हारे किसी मर्द के बाप नहीं है, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो कि आपने अपनी बहू से निकाह किया है, जब आपका कोई बेटा ही नहीं है, जब आप किसी मर्द के बाप ही नहीं है। जब आपका कोई बेटा ही नहीं तो बहू कहां से आ गई और बहू से निकाह आपने कैसे कर दिया? ये पहले एतराज का जवाब था। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद तुम्हारे अंदर किसी मर्द के बाप नहीं है। वलाकिर रसूल अल्लाह, बल्कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तुम्हारा एतराज ये है कि अल्लाह के नबी ने 5वां निकाह कैसे कर लिया? तुम ये क्यों भूल गए? मेरा नबी मेरा नुमाइंदा है, वो अल्लाह का रसूल है, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करता है। अगर हमने अपने नबी को हुक्म दिया कि तुम ज़ैनब से निकाह कर लो, तुम कौन होते हो एतराज करने वाले? जिस अल्लाह ने तुमको 4 निकाह की इजाजत दी, उसी अल्लाह ने अपने नबी को 5वें निकाह की इजाजत दी है। और तीसरा एतराज ये था कि अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैनब से निकाह क्यों कर लिया? ना करते, मसलहत का तकाजा था कि ना करते, बाद में कर लेते। अल्लाह ने उस एतराज का भी जवाब दिया, वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मेरा नबी तो खातमुन नबिय्यीन है, मेरा नबी तो आखिरी नबी है। अब दुनिया में जितनी बुरी रस्में हैं, उन रस्मों को तोड़ने वाला कोई और नबी दुनिया में आने वाला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम इस बुरी रस्म का खात्मा अपने नबी के जरिए करा दें, क्योंकि हमारा नबी आखिरी नबी है। एक आयत में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के इन तीनों एतराजात का जवाब दे दिया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत इबादत गुजार थी, रातों को अल्लाह की राह में रोया करती थी, अल्लाह के डर से रोया करती थी। अल्लाह के नबी इनको अव्वाह का लक़ब दिया था। अव्वाह का मतलब आहें भरने वाली, आहें भरने वाली। अल्लाह के खौफ से ये रातों को रोया करती थी। इनकी नेकी और इनके तकवा की गवाही हजरत आयशा ने दी है। एक सौतन दूसरी सौतन के बारे में गवाही दे, बड़ी बात है। सही मुस्लिम की 2442 नंबर की हदीस है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि ज़ैनब वो थी जो नबी की बीवियों में मेरी टक्कर की थी। हियल्लती कानत तुसामीनी मिन अज़वाजिन नबी, ज़ैनब वो थी जो इतनी खूबसूरत थी और इतनी पाक दामन थी कि मेरी टक्कर की थी। और वलम अरा इमरातन कत्तु खैरन फिद्दीन, मैंने इतनी ज्यादा दीनदार औरत कोई और नहीं देखी। मैंने ज़ैनब से ज्यादा दीनदार, वो अत्का मिनहु, उससे ज्यादा अल्लाह से डरने वाली, वो अस्दक हतीसा, उससे ज्यादा सच बोलने वाली, वो औसल लिर्रहिम, उससे ज्यादा रिश्ता निभाने वाली, वो आज़म सदक़तन, उससे ज्यादा सदका करने वाली और अल्लाह के लिए अपना सब कुछ लुटा देने वाली मैंने कोई और औरत नहीं देखा। ये हजरत ज़ैनब बिन्त जहश थी। जब हजरत आयशा के ऊपर झूठा इल्जाम लगा तो अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैनब से भी पूछा था कि ज़ैनब तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या आयशा ऐसा काम कर सकती है? तो हजरत ज़ैनब ने कहा था, अहमी समई व बसरी, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने कान को और अपनी आंखों को ऐसी बात कहने से बचाती हूं जिस बात का मुझे हक नहीं है। मैं क्यों गलत बात अपनी कान से सुनूं और क्यों गलत बात अपने आंखों से देखूं और कहूं? मा अलिम तो अलैहा इल्ला खैरा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आयशा के बारे में जितना जानती हूं, आज तक मैंने आयशा को कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। मैं आयशा के बारे में भलाई की गवाही देती हूं, मैं उनको नेक जानती हूं, अच्छा जानती हूं। हजरत ज़ैनब
चमड़े की दस्तकारी करती थी, चमड़े के सामान बनाती थी और उससे जो आमदनी होती थी अल्लाह की राह में खर्च कर देती थी। बेइंतहा सखावत का जज्बा था। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा अपनी बीवियों से कहा, सही बुखारी की 1420 और सही मुस्लिम की 2452 नंबर की हदीस है, आपने अपनी बीवियों से कहा कि अस्रउकुन्न लिहाकम बी अतवलुकुन्न यदन, मेरी बीवियों में सबसे पहले मुझसे वो औरत मिलेगी जिसका हाथ सबसे लंबा है। तो अल्लाह के नबी की अज़वाज मुतहरात अपने हाथों को नापने लगी। जब हाथों को नापा जाने लगा तो हजरत सौदा, चूंकि लंबी चौड़ी थी, हजरत सौदा का हाथ सबसे लंबा था। तो लोगों ने यह समझा कि रसूल अकरम के इंतकाल के बाद सबसे पहले किसका इंतकाल होगा? हजरत सौदा का होगा। लेकिन हकीकत में नबी का इशारा यह था कि मेरी वो बीवी मेरे बाद सबसे पहले इंतकाल करेगी जो सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करती है, सबसे बड़ी दिल दरिया है, सबसे ज्यादा हाथ की ऊंची है, खर्च करने वाली है। और ये कौन थी? अम्मा आयशा फरमाती हैं, फकानत अतवलुना यदन ज़ैनबु, हमें सबसे लंबे हाथ वाली, अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली ज़ैनब बिन्त जहश थी। लिअन्नहा कानत तामलु बियदिहा, अपने हाथ से वो काम करती थी, व तसद्दक़ु, और जो कमाती थी अल्लाह की राह में खर्च कर देती थी। हजरत ज़ैनब का इंतकाल हजरत उमर फारूक के दौर में सन 20 हिजरी में हुआ था और आपकी जनाजे की नमाज हजरत उमर ने पढ़ाई थी। आप अल्लाह के रसूल की बीवियों में अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद सबसे पहले इंतकाल करने वाली आपकी बीवी है। तरतीब के एतबार से हजरत ज़ैनब का जो नंबर आता है अल्लाह के रसूल की बीवियों में वो 7वां नंबर है। हजरत उम्मे सलमा 6ठे नंबर पर आती है और हजरत ज़ैनब बिन्त जहश ये 7वें नंबर पर आती है। तो ये आज के दर्स में हमने हजरत उम्मे सलमा और हजरत ज़ैनब बिन्त जहश की जिंदगी के कुछ अहम वाक़यात आपके सामने बयान किए। आइए अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको इन मुक़द्दस ख़वातीन नबी की इन बीवियों की जो ज़िंदगी है, जो नसीरत है, उससे हम सबको नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे घरों में भी, हमारे घर की ख़वातीन में भी नेकी का, दीनदारी का, शर्म व हया का, अल्लाह की राह में कुर्बानी का वो जज्बा पैदा फरमा दे जो अल्लाह के नबी की बीवियों के अंदर था। रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे, हम अल्लाह के रसूल से, आपके अहले बैत से, आपकी अज़वाज मुत्तहरात से, आपके सहाबा से सच्ची मोहब्बत करें। रब्बुल आलमीन हमें इसी मोहब्बत पर जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रखे और इसी मोहब्बत पर हमारा खात्मा फरमाए। हमें से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल अजील अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे। एक इंसान दुनिया में सबका प्यारा है, उसके बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बीवी उसको बहुत चाहती है, उसके मोहल्ले वाले, उसके गांव वाले उसकी बड़ी कदर करते हैं। मगर जिस दिन उस इंसान की मौत आती है, जिस दिन वो मरता है, उससे इतनी मोहब्बत होने के बावजूद उसकी लाश को कोई घर में रखता है। आइए पहले देखते हैं रसूल पाक का घर कैसा है। अल्लाह, बड़ा मामूली सा घर है, आज की तरह बहुत शानदार नहीं है, उसमें डेकोरेशन नहीं है, उसमें सजावट के आइटम्स नहीं है, दुनिया की तरक्की के सामान नहीं, छोटा सा घर है। खजूर की लकड़ी के तनों का पिलर बनाया गया है। उम्मत का एक बड़ा तबका आज शिकम परवर और पेटू किस्म के आमिलों के चक्कर में और मुल्लाओं के चक्कर में आज अपने दीन और ईमान का सौदा कर रहा है और तावीज़ और गंडे के इस्तेमाल के जरिए अपनी तौहीद और अपने ईमान का जनाजा एक